Good morning to all of you. Now we are proceeding to start the actual syllabus of your semester 1 for the chemistry 1 for the unit 1. I said you in last lecture that I will taught that particular chemistry 1 and chemistry 2 unit 1. Pawar sir will taught you the unit 2 of the paper 1 and paper 2. Shoaib sir will taught you the unit 3 of paper 1 and paper 2. Okay, today we are going to start the 1.1. Last time I discussed the syllabus. Just I am sharing the screen. That a chemical thermodynamics part we have to start. This chemical thermodynamics you have already studied in the 12th. It was also the online mode. Now, first of all, you should remember, you should know the what is the thermodynamics, right? Thermodynamics is nothing but the branch of the science which deals with the relative energy levels and transfer of energy between system and other state of matter. I think so. You are getting a definition. It is a very simple definition. It is a branch of science which deals with the relative energy levels. What is there? We have to study about the energies associated with the system, or you can say the matter. Means, as you know, we know the temperature. You know the definition of the temperature? Temperature is nothing but a measure of the hotter or colder of the body. Okay, means hotness or say coldness, we can just check. Hotness or coldness of the any object or say body is just measure. उसे हम क्या कहते हैं टेम्परेचर. अगर वो हॉट है तो कितना है 50 डिग्री है 60 डिग्री है. यू नो द बॉडी टेम्परेचर कितना होता है. बॉडी टेम्परेचर you can speak, huh? You can unmute and you can say the answer. Anybody knows body 5 temperature degree, कितना होता है? How much? 35. 37 बेटा. 37 नियर अबाउट 37 डिग्री ये बॉडी टेम्परेचर होता है. ओके, एंड यू नो जब हमें फीवर के जैसी कंडीशन रहती है, जब बुखार आती है, तो डॉक्टर जो टेम्परेचर नोट करता है किसमें नोट करता है? एनीबडी नोट्स? फेराइट, राइट. उसमें आपको बोलेंगे 100 के ऊपर है, 101, 102, 103, 104, राइट. It is again the one of the conversion unit. It is a unit of the temperature. I am coming to our point. What is the thermodynamics? That is a branch of the science which studies the energy, different energies associated with the system or say matter. Whatever the changes or say transfers are taking place, that has been studied by this particular thermodynamics. Now, we are talking about here chemical thermodynamics. Means chemical are there, and for that we have to study the energy, right? Means any reaction is there, and associated with this reaction we have to study the energies, right? Chemical reaction is nothing but the rearrangement of atoms from one structure of configuration to another, normally accompanied by an energy change. During the reaction, it
either liberate heat or absorb the heat. Absorb the heat. ओके, रिएक्शन मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जैसे कि हम बात करते हैं, हम दो, जैसे कि लेट्स से टू थिंग्स, वन कंपोनेंट रिएक्शन भी रहती है में, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी रहती है, बायमोलिकुलर भी रहती है। अब यूनिमोलिकुलर में क्या रहता है कि एक ही टाइप का मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही टाइप के एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं और रिएक्शन देते हैं, बराबर। रिएक्शन मतलब क्या ना, मतलब व्हाट इज एन रिएक्शन, स्पेशली द केमिकल रिएक्शंस वी आर टॉकिंग, जस्ट चेंजिंग ऑफ द पोजीशन। अभी स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, तो स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, जैसे कि सिंपलेस्ट एग्जांपल आई एम शोइंग यू, आपको पता है, जैसे कि एसिड और बेस, बराबर है, एसिड और बेस दो चीजें एक साथ आती है, HCl प्लस NaOH, हाँ, तो क्या फॉर्म होता है, एनीबडी नोज, व्हेन the HCl and NaOH react with each other, at that time what will be the byproduct? NaCl and H2O. राइट, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, बराबर है। तो क्या हुआ, जस्ट रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट मतलब क्या, एक का आइटम इधर चला गया, दूसरे का आइटम आके वहां पे चिपक गया, मतलब NaOH का OH जो है वो Cl से रिप्लेस हो गया, दैट इज एन रीअरेंजमेंट, ओके। और से वन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे कि क्या होता है कि समझो, जैसे कि एक कार्बन है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन मतलब क्या, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर चार अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बन के ऊपर सेंट्रल में एक कार्बन है और उसको, कार्बन की आपको कैपेसिटी मालूम है, वो चार बॉन्ड फॉर्म करता है, बराबर है। तो कार्बन के ऊपर चार बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी रहती है उसके पास, तो उसमें से चारों भी बॉन्ड के ऊपर, फोर टर्मिनल्स के ऊपर अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, तो वो कायरल है। तो वो ग्रुप चेंज हो गया, समझो पोजीशन चेंज हो गई, तो भी मैटर करता है, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। During the chemical reaction, they may liberate or absorb the heat, that you have to remember. Then the thermodynamic terms, basic terms you should remember always. System, अभी सिस्टम किसे कहते हैं, कि जैसे कि अभी हम स्टडी करते हैं, बराबर है, अभी स्टडी करते हैं तो हम लैब में जाते हैं, राइट। लैब बहुत बड़ी लैब होती है, मगर आप जो काम करते हैं, आप जो स्टडी करते हो, किसमें करते हैं, आइदर कोनिकल फ्लास्क में, आइदर इन द बीकर, बराबर है, राइट। तो बीकर आपके लिए क्या हुआ, आपका सिस्टम हुआ, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर द कंसिडरेशन और स्टडी, जिसमें आप स्टडी करने वाले हैं। सराउंडिंग इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम यूज फॉर द स्टडी। Boundaries are nothing but a lines differentiating or dividing system or surroundings are called as boundaries. क्या करती है, ऐसी लाइंस जो कि दोनों को अलग करती है, उसे बाउंड्रीज कहते हैं। जैसे कि बीकर है, बीकर का जो राउंड शेप है, दैट व्हाटएवर इज दैट, दैट इज एन बाउंड्रीज फॉर अस, उसके बाहर नहीं जा सकते हम। जो कुछ भी करना है हमें किधर करना है, रिएक्शन करनी है तो बीकर में करनी है, टाइट्रेशन करना है तो किधर करना है, कोनिकल फ्लास्क के अंदर करना है, राइट। रजिस्ट्रेशन की लिंक देनी पड़ेगी, उसको अच्छे कॉम्पिटिशन्स के लिए रजिस्ट्रेशन की लिंक बनाना पड़ेगा। देन टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स, अभी ये तो सिस्टम्स का हमने देखे, अभी कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं ये भी आपका 12th में हुआ है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द सिस्टम, फर्स्ट वन इज द ओपन, सेकंड इज द क्लोज्ड एंड थर्ड वन इज द
Sir, I can't hear you. Sir, I can't hear you.